Hello students, today we discuss about the solid waste management of lesson number 9, environmental management. First we discuss about the solid waste. Various materials are generated through the human activities. Now this is called as the solid waste. If these waste are disposed properly, it can be a valuable resource. Otherwise, it becomes a big problem. Currently, solid waste is a serious problem or worldwide problem because it affects environment, it affects health, and it also affects the economic growth of the country and environmental degradation. So, there is a necessity for the proper management of the solid waste. In Mumbai, near about 5,000 tons of solid waste generated per day. In Pune, 1,700 tons solid waste generated. And in Nagpur, near about 900 tons of solid waste generated per day. So it is a serious problem and it causes soil pollution, then water pollution as well as air pollution. So first we discuss about the solid waste. So solid waste यानी क्या? The unwanted solid material which we don't need any longer are the solid waste. So such a materials are thrown away. तो जो अनवांटेड मटेरियल है जो हम यूज करते हैं और उसके बाद में वो उसका यूज नहीं होता, ठीक है, और उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं या फेंक देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिड वेस्ट. नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स, दैट इज डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फार्म और गार्डन वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, radioactive waste and mining waste. Domestic waste means the waste material generated in the house. There is a vegetables, fruits, unwanted part of the fruit, then unwanted part of the vegetables, spoiled food, paper, or various materials which are produced in our house. So it is called as the domestic waste. Industrial waste, the waste coming from the industries. It contains dyes, paints, chemicals, residues, heavy metals. Farm or garden waste, the waste material producing farm, the residues of the crop, pesticides, remain of or residue of the pesticides, then what we can say, leaves, so various parts of the plant which are not used. So it is called as the farm waste or garden waste. Garden waste, the waste which is produced in the garden. Electronic waste, in electronic waste, the electronic gadgets are comes which are not in functioning, like discarded CDs, discarded TV sets, mobiles, etc. Then biomedical waste. Biomedical waste में क्या आता है, जो भी waste मेडिकल से या हॉस्पिटल से आता है, दैट इज कॉल्ड एज द बायोमेडिकल वेस्ट. जैसे सिरिंजेस है, देन एम्प्यूटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड, कॉटन, सलाइन बॉटल्स, तो ये सब जो मटेरियल है वो किस में आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट. अर्बन वेस्ट, द वेस्ट कमिंग फ्रॉम द अर्बन एरियाज, इसमें हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है या अदर इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल. Then radioactive waste, this waste generated in atomic power plant, then again nuclear reactor, जो इसमें जो waste produce होता है, that is called as the radioactive waste. And mining waste means during mining activities various heavy metals residues are there, that is cadmium, then arsenic, silicon. So these waste material are called as the mining waste. Then again there are two types of waste, or waste can be categorized into two main parts, that is biodegradable and non biodegradable. अब ये biodegradable waste यानी जो waste क्या होता है, डिकम्पोज होता है, नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस.
द वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहेंगे हम, दैट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे किचन वेस्ट है, वेस्ट पार्ट ऑफ द दैट इज वेजिटेबल्स, पील ऑफ फ्रूट्स या स्पॉइल्ड फूड, पेपर, ये जो है ये क्या होता है, डिग्रेडेड होता है, डिकम्पोज होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इसे वेट वेस्ट भी कहते हैं। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी द वेस्ट विच कैन बी विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं होती, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज फास्ट, इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द डिकम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, थर्माकोल, ये जो है ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ड्राई गार्बेज, क्या कहते हैं इसे, ड्राई गार्बेज और ड्राई वेस्ट। Then we see the harmful effect of solid waste. Now before see the harmful effect of solid waste, we discuss about the necessity, okay, necessity of solid waste management. So first we see harmful effect of solid waste. तो ये जो सॉलिड वेस्ट है, अब सॉलिड वेस्ट यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है जो डिस्कार्डेड है, तो वो क्या होता है, इट कैन बी सिग्रीगेटेड एनीवेयर एंड देन इट इज कॉल्ड एज द वेस्ट। तो इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, अगर आपके टेक्स्ट बुक में दो पिक्चर दिए हैं, एक में क्या दिया है, एक क्या है, रोड है और उसके आजू बाजू में बहुत सारी क्या है, गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, और दूसरा जो पिक्चर है उसमें क्या है, पूरा जो एरिया है वो पूरा क्या है, क्लीन है। तो क्या होता है, जहाँ पे वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, तो वो किसको अफेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी। देन स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस, अब ये जो वेस्ट मटेरियल है उसमें बायोमेडिकल वेस्ट भी रहता है, और उसके कारण क्या होता है, वेरियस जर्म्स और पैथोजन स्प्रेड थ्रू द सॉलिड वेस्ट। देन सॉइल पोल्यूशन, इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, बिकॉज इन सॉलिड वेस्ट if it is not properly disposed of or burn, तो क्या होता है, it produces toxic gases, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके कारण क्या होता है, it causes air pollution. Then degradation of natural beauty, अगर solid waste जहाँ पे भी रहता है, ठीक है, तो वहाँ की जो ब्यूटी है वो क्या होती है, यानी ब्यूटी जो है वो कम हो जाती है। वो जो एरिया है, यानी वो जो जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा है, हीप ऑफ गार्बेज है, तो आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे क्या, नहीं, या उसमें वो जो हीप ऑफ गार्बेज रहता है उसमें से क्या होता है, बैड ऑर्डर इज कमिंग, सो इट लॉस द नेचुरल ब्यूटी। देन प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, और ये जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से टॉक्सिक गैसेस भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। देन बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट, तो मैंने अभी भी कहा आपको कि जहाँ पे बहुत सारा क्या है, कचरा है या गार्बेज है, हीप ऑफ गार्बेज, तो क्या होगा, वहाँ पे जो स्मेल है वो क्या आता है, बैड स्मेल आता है। देन वी सी द नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो इन ऑर्डर टू मीन्स क्लीन अवर एनवायरमेंट, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ये उससे क्या होगा, तो एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, या जो ये सॉलिड वेस्ट है उसका यूज हम क्या कर सकते हैं, उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर और कंपोस्ट, और उसके थ्रू क्या हो सकता है, जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, और इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, मीन्स वी कैन प्रोड्यूस other sources of energy from this waste. Now we discuss about the scientific and eco-friendly waste management. तो वेस्ट को अगर हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली या इको फ्रेंडली अगर मैनेज करते हैं, यानी उसको प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, तो क्या होगा, इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज, दैट वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड, वी कैन प्रोड्यूस बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस वेस्ट. So what are the various method of scientific and eco-friendly waste management? So first is the separation and categorization of waste. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेपरेट करना चाहिए. सेपरेट करने के बाद में क्या करना चाहिए, कैटेगराइजेशन. कैटेगराइजेशन यानी वो वेस्ट किस टाइप का है, जैसे
डोमेस्टिक वेस्ट है क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट है क्या, अर्बन वेस्ट है क्या, रेडियो एक्टिव वेस्ट है क्या, क्योंकि जैसा वेस्ट रहेगा उसी तरह से उसकी जो मेथड है डिस्पोजल की वो भी क्या रहेंगी, अलग रहेंगी। देन सेकंड इज द कंपोस्टिंग। अब जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उसे हम, या फार्म वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, तो क्या कर सकते हैं हम उससे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन सेफ लैंडफिल साइट्स। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या कर सकते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं, लेकिन वो जो साइट है वो क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, और वो उसका भी प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। इट शुड बी कवर्ड विथ प्लास्टिक। उससे क्या होगा, देयर इज नो पर्कुलेशन, यानी वो जो लिक्विड रहेगा उसमें जो हजार्डस लिक्विड है या केमिकल्स है तो वो पर्कुलेट नहीं होंगे सॉइल में। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सेफ लैंडफिल साइट्स। देन वर्मी कंपोस्टिंग। with the help of earthworm we can convert organic waste into the वर्मी कंपोस्ट। तो अर्थवर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, और ये अर्थवर्म क्या करता है, कन्वर्ट दैट ऑर्गेनिक जो मटेरियल इनटू द कंपोस्ट। देन इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल आता है तो उसमें पॉइजनस केमिकल्स रहते हैं, हेवी मेटल्स रहते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए जो मेथड है, ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो मेथड है वो क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। देन पायरोलिसिस। अब ये पायरोलिसिस क्या है, तो हीटिंग ऑर्गेनिक मैटर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो इसमें इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरोलिसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्या है, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। ऑर्गेनिक वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन अ क्लोज कंटेनर। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें भी जो वेस्ट मटेरियल रहता है जो मेडिकल से आता है तो उसमें पॉइजनस गैसेस हो सकते हैं या उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं, तो उसको भी क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। तो इसमें इंसिनरेशन यानी क्या, तो बर्न द सॉलिड वेस्ट coming from the hospitals at high temperature in presence of oxygen, so that method is called as the incineration. In this way we can scientifically or eco-friendly manage the waste material. So we should means protect our environment and also health.